morning, students. This is Professor Dharmendra Singh Sabja from Electronics and Communication Engineering Department, Sister Gandhipur, Bhopal. Today we are going to take a topic of digital system and design subject, that is logic gates. So, what is logic gate? Logic gate is a basic building block of any digital system, or we can say that it is an electronic equipment or it is an electronic device that has one or more than one inputs and one outputs. The relation between input and output depends on the logic. There are certain gates in digital systems comes under the logic gates. There are three categories. One is basic gate, one is universal gates, and one is special gates. In basic gates, there are three categories. First one is AND gate. AND gate का सबसे पहले हम सिंबल देखते हैं. What is the symbol of AND gate? It has two or more than two inputs and one outputs, that is Y. Inputs are A and B. The function of AND gate is to perform the multiplication operation. If you will see the truth table of AND gate, truth table shows the relationship between input and output. As we have seen in the symbol, we have inputs A and B and outputs Y. As we are talking about digital and binary, so we have two variables. In total there are four combinations comprised of these two variables, that is 0 0, 0 1, 1 0 and 1. This is the inputs of AND gate. Now, as I have told you, the operation of AND gate is to multiply both inputs and provide the output. So, if you multiply 0 into 0, you get output 0. If you multiply 0 into 1, you get output 0. If you multiply 1 into 0, you get output 0. If you multiply 1 into 1, you get output 1. So, this is the truth table of AND gate. And if we talk about the logic expression of AND gate, so we can find out from the output. Output हमारा Y है. Y में हाई किस पोजीशन पे है? हाई लास्ट पोजीशन पे है. उसके लिए हमारी बाइनरी कॉम्बिनेशंस क्या है या इनपुट वेरिएबल कॉम्बिनेशंस क्या है? इनपुट A जो है वो भी 1 है, दैट इज इट इज A. इनपुट B है वो भी 1 है, दैट मींस B. अगर इनपुट A जो है 0 होता तो A की जगह A बार होता. अगर इनपुट B 0 होता तो B की जगह B बार होता. तो हम कह सकते हैं the logic expression of AND gate is Y equals to AB. This is the operation and everything about AND gate. Now we'll talk about the second gate of basic gates, that is OR gate. OR gate perform the operation of addition. ओके, जैसे AND gate मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर रहा था, ये एडिशन को करेगा. तो अब अगर हम इसका लॉजिक डायग्राम देखें या सिंबल देखें तो देख सकते हैं हमारे पास दो इनपुट्स हैं A B and output is Y. तो this is the shape of OR gate. We can say this is the symbol of OR gate. And now if we talk about the table of OR gate, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि ये ऐड करता है दो इनपुट्स को या तीन इनपुट्स को, जितने भी इनपुट्स होंगे, तो 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is again 1 and 1 plus 1 is 1. Fine. अब अगर हमें इसका लॉजिक एक्सप्रेशन निकालना है तो लॉजिक एक्सप्रेशन हम आउटपुट Y से निकाल सकते हैं. अगर हम इसको सॉल्व करें तो we get Y equals to, हमें ऐड करने पड़ेंगे सभी वैल्यूज जहां जहां 1 आ रही हैं उनकी बाइनरी वैल्यूज.
तो वन आउटपुट पे हमें फर्स्ट यहां इस पोजीशन पे मिल रहा है, उसके रिस्पेक्ट पे बाइनरी वैल्यूज क्या क्या है, ए पे 0 है, बी पे 1 है, दैट मींस वी राइट ए बार बी। नेक्स्ट वन इस पोजीशन पे इसके लिए ए की वैल्यू 1 है और बी की 0, दैट मींस वी राइट ए बी बार। एंड देन y1 कहां पे लास्ट पोजीशन पे है, उसकी वैल्यू क्या है ए बी की, दैट इज ए बी। अब इसको अगर हम बुलेट अलजेब्रिक मेथड से मिनिमाइज करें तो हम देख सकते हैं इन दोनों में ए कॉमन है, we'll take a common and we'll find out b bar plus b plus ab। हमने पढ़ा था और लॉस में कि a plus a bar is 1, सिमिलरली b plus b bar का होगा, तो यहां पर b plus b bar की जगह हम करते हैं, you will get the expression a plus ab। हमने इंटरचेंज कर दी पोजीशंस। नाउ आपने एक इंपॉर्टेंट लॉ में पढ़ा था a plus ab is again a plus b, फाइन। तो a plus ab को हम a plus b लिख सकते हैं। सॉरी, दिस इज a bar, a bar b। तो वी हैव स्टडीड वन लॉ a plus a bar b is a plus b, तो हमने इसकी जगह पे we will write a plus b। तो लॉजिक एक्सप्रेशन ऑफ OR गेट इज y equals to a plus b। This is the logical expression of OR gate. Fine. Now we discuss the next category of basic gate, that is NOT gate. नॉट गेट सिर्फ ऐसा गेट है जिसमें नंबर ऑफ इनपुट्स सिर्फ एक होते हैं, बाकी सभी गेट्स में नंबर ऑफ इनपुट्स मिनिमम तो होते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हर गेट का एक ही होता है। तो नॉट गेट क्या करेगा, इट विल परफॉर्म द ऑपरेशन एज एन इन्वर्टर, वो कॉम्प्लीमेंट कर देगा, इनपुट हम जो भी देंगे आउटपुट उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो बेसिक सिंबल ऑफ नॉट गेट इज दिस, अगर हम इनपुट ए देते हैं विल गेट आउटपुट ए बार। अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें नॉट गेट की, तो दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट, इनपुट इज ए, आउटपुट इज ए बार। अब ए हमारे पास एक बाइनरी वैल्यू है, इसके दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, आइदर 0 आइदर 1। तो अगर हम ए को इनपुट 0 देते हैं तो आउटपुट हमें मिलेगा 1, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट है आउटपुट। अगर हम 1 देते हैं तो इसका आउटपुट मिलेगा 0। तो अगर हम लॉजिकल डायग्राम की बात करें, लॉजिकल एक्सप्रेशन की बात करें ऑफ नॉट गेट की, तो वी कैन राइट डाउन y इक्वल्स टू, ये हमारा आउटपुट y हो गया, इक्वल टू a बार। अगर हमारा इनपुट a है तो आउटपुट हमारा होगा a बार। दिस इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ नॉट गेट, फाइन। नाउ दिस इज ऑल अबाउट बेसिक गेट्स। नाउ there are again second category of gates, they are known as universal gates। देखते हैं यूनिवर्सल गेट्स। इससे पहले जो हमने गेट्स पढ़े बेसिक गेट्स, उनको बेसिक गेट्स क्यों कहा जाता है, उनको बेसिक गेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी बाकी के स्पेशल गेट्स होंगे या यूनिवर्सल गेट्स होंगे, सभी गेट्स इनकी मदद से ही मिलके बनेंगे। ओके, तो पैरेंट गेट्स ऑफ एवरी गेट्स आर बेसिक गेट्स, फाइन। तो यूनिवर्सल गेट्स हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, वन इज NAND गेट, जैसा कि मैंने बोला कि NAND गेट का भी जो कंस्ट्रक्शन होगा या डेवलपमेंट होगा वो बेसिक गेट्स के थ्रू ही होगा। तो NAND गेट का कैसे पढ़ा नाम, N फॉर नॉट एंड N फॉर AND गेट। तो NAND गेट में दो प्रकार के बेसिक गेट्स हैं, एक नॉट गेट और एक AND गेट। तो बेसिक सिंबल ऑफ NAND गेट होगा हमारा सबसे पहले AND गेट AB, और उसके आउटपुट में हमने नॉट गेट लगा दिया, तो दैट इज ये आउटपुट। तो AND प्लस नॉट विल बी NAND गेट। तो हम इसका सिंबल बना सकते हैं
यूनिक सिंबल दैट इज ए बी इनपुट, और आउटपुट में अगर हमारे पास या कहीं भी हमारे पास नॉट गेट हो तो हम उसको बबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वी कैन पुट हियर द बबल एट द आउटपुट एंड दिस वर्क एज अ नॉट गेट. So this is the symbol of NOT gate. Sorry, NAND gate. Now we will talk about the truth table of NAND gate. So truth table में again there are inputs and outputs. Input हमारे पास दो है A, B, output है एक सिंगल बाइट. तो दो के नीचे बनेंगे 4 0 0 0 1 1 0 1 1. Now अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि AND गेट की जो प्रॉपर्टी थी, AND गेट की प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेशन करना और नॉट गेट की प्रॉपर्टी थी कॉम्प्लीमेंट करना. तो मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या लग रहा है? कॉम्प्लीमेंट, नॉट. तो जो हमारा AND गेट का परफॉर्मेंस था या जो हमारे AND गेट की कैरेक्टरिस्टिक थी, NAND गेट जस्ट उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा. मतलब वहां पर क्या था, हम जब दो इनपुट्स हाई लेते थे तो हमारा आउटपुट हाई होता था, अदरवाइज कोई एक सिंगल इनपुट भी जीरो है तो हमारा आउटपुट जीरो होगा. अब यहां पर उल्टा होगा कि जब दो हाई इनपुट होंगे तो आउटपुट जीरो होगा और कोई सिंगल इनपुट भी जीरो होगा तो आउटपुट हमारा हाई होगा. दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ NAND gate. Fine. Now we will find out its logical expression. Fine. तो लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ NAND gate is, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. हमको पता था AND गेट का लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या था? AB. राइट. अब NAND गेट में क्या कर रहे हैं? AND प्लस नॉट. तो AND का जो एक्सप्रेशन है AB, उसको हम नॉट करना, दैट मींस वी आर कॉम्प्लीमेंटिंग इट. तो हम उसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे. दिस इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ NAND गेट. और आइदर यू कैन सॉल्व इट यूजिंग द बुलियन अलजेब्रा. हम तीनों के लिए एक एक्सप्रेशन लेंगे, उसको मिनिमाइज करें, यू विल गेट दिस AB का होल बार. फाइन. तो दिस इज यूनिवर्सल गेट, NAND गेट. नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ यूनिवर्सल गेट, दैट इज NOR गेट. NOR. Again, NOR में N stands for not and OR is the OR gate. So NOR gate is constructed using the two gates, that is NOT and OR. तो सबसे पहले हम OR gate का सिंबल बना देते हैं. इनपुट्स दे देते हैं हम लोग A और B. अब आउटपुट पे हम एक NOT गेट लगाएंगे बिकॉज NOR में NOT और OR दोनों है. we'll get the output by. अब इसको हम एक यूनिक सिंबल के फॉर्म में बनाने के लिए इस नॉट गेट को एज अ बबल के फॉर्म में बना देते हैं. we'll get output by and we'll get inputs AB. Fine. So this is the symbol of NOR gate. Now we'll talk about the truth table of NOR gate. So there are inputs and outputs, and there are two inputs AB and output 1 by. तो दो इनपुट्स के चार कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1. ठीक है. NOR गेट भी OR गेट का जस्ट अपोजिट ऑपरेशन करेगा. तो OR गेट का एक्सप्रेशन क्या था हमारा? 0 1 1 1. मतलब OR गेट की बेसिक प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर कोई भी एक इनपुट हाई है तो आउटपुट आपका हाई होगा. फाइन. तो 0 1 1 1 था, तो जब उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो हो जाएगा 1 0 0 0. तो अब अगर हम NOR गेट की प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? अगर कोई भी एक इनपुट 1 है तो आपका आउटपुट 0 रहेगा. हम देख सकते हैं सेकंड कैटेगरी में एक इनपुट बना है, थर्ड कैटेगरी में एक इनपुट बना है, फोर्थ कैटेगरी में दोनों या कोई एक इनपुट बना है. तो अगर कोई एक इनपुट भी हाई होगा तो आपका आउटपुट लो होगा. दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ NOR गेट. फाइन. एंड अब अगर इसके हम लॉजिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ NOR गेट इज, वी कैन फाइंड आउट, जैसा हम पिछले केस में देखा था NAND के केस में, तो NAND के केस में हम ने जो OR गेट का एक्सप्रेशन लिया था, OR गेट का
एक्सप्रेशन क्या था, सॉरी नाइंड गेट का एक्सप्रेशन क्या था, AB, और हमने उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया था, AB का होल कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली यहां हम OR गेट का एक्सप्रेशन लेंगे, दैट इज A plus B, उसके ऊपर हम होल कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, दिस कॉम्प्लीमेंट स्टैंड्स फॉर दिस नॉट गेट। ठीक है, तो दिस इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ योर OR गेट। और डायरेक्टली हम बूलियन अलजेब्रा के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर बूलियन अलजेब्रा के फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, y plus 2 a bar b bar, राइट। अब अगर हम इसको डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते हैं तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ब्रेक द बार चेंज द साइन। अगर हम इस पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हैं तो इट विल गिव यू y equals to दैट इज a bar डॉट b bar। तो दोनों केस में आपका जो एक्सप्रेशन है वो सेम आएगा, फाइन। तो लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट द लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ NOR गेट। नाउ we'll come to the next category, that is special gates. Two categories are completed, one is basic gate, other is universal gate. Basic gates में कौन कौन से गेट्स है हमारे पास, AND, OR and NOT, और यूनिवर्सल गेट्स में कौन कौन से थे, NAND and NOR। Now we talk about the special gates। स्पेशल गेट में दो कैटेगरी है, एक एक्सक्लूसिव और गेट और एक एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट को हम शॉर्ट में लिखते हैं एक्स और गेट, फाइन। तो अगेन इसका जो पेरेंट गेट है वो और है, इसके अलावा एक कर्व सिंबल होगा एट द इनपुट दैट शोज द इनपुट A and input B and output is 1. Now if we talk about the table of exclusive OR, input output, input AB output by input अगर दो है A और B तो उसके चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, दैट इज 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, एक्सक्लूसिव और का फंक्शन होता है मेन, उसका कैरेक्टरिस्टिक होती है अगर दोनों इनपुट सेम हुए तो इट विल प्रोवाइड द आउटपुट 0। अगर दोनों इनपुट 1 हुए तो इट विल प्रोवाइड, सॉरी दोनों इनपुट डिफरेंट हुए तो इट विल प्रोवाइड द आउटपुट 1। अगर दो सेम इनपुट होंगे तो आउटपुट 0, डिफरेंट इनपुट होंगे तो आउटपुट 1। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट कैटेगरी में इनपुट सेम है, सेम होगा 0 0 सेम है तो आउटपुट विल बी 0। सेकंड एंड लास्ट कैटेगरी में देखिए इनपुट दोनों सेम है, 1 1 इज सेम तो इट विल गिव आउटपुट अगेन 0। सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी में हम देख रहे हैं कि हमारे इनपुट्स डिफरेंट है। फर्स्ट कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में इनपुट 0 और 1 है, इट विल गिव आउटपुट 1। अगेन नेक्स्ट कैटेगरी में इनपुट आउटपुट 0 है, इट विल गिव आउटपुट 1। अब अगर हम इसके लॉजिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो लॉजिकल एक्सप्रेशन हम इसके टेबल से निकाल सकते हैं। हमारे आउटपुट पे दो जगह हाई आ रहा है, बना रहा है, तो फर्स्ट वन जो आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में बाइनरी पॉसिबिलिटी क्या है, A बार B। नेक्स्ट केस में इट इज A B बार। तो दिस इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ एक्सक्लूसिवली और गेट और एक्स और गेट। और इसको हम एक्सप्रेशन सिंबल से भी बना सकते हैं, दैट इज A XOR B। दिस इज वन मोर लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ XOR B। ये इस साइन को बोलते हैं मॉड ऐड। इसका मेन उद्देश्य ये होता है अगर दो सेम इनपुट होंगे तो आउटपुट 0 होगा, डिफरेंट इनपुट होंगे तो आउटपुट 1 होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सक्लूसिव और गेट। Now we'll talk about the next gate which comes under the category of special gates, that is exclusive NOR gate.
जैसा हमने देखा था पिछले केस में एक्सक्लूसिव ऑर गेट को हम एक्सॉर गेट बोलते थे, तो यहाँ भी हम एक्सक्लूसिव नॉर गेट को एक्स नॉर गेट भी बोल सकते हैं। नाउ विल सी इट्स लॉजिकल सबसे पहले सिंबल, तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव ऑर का सिंबल बना है। दिस इज द सिंबल ऑफ एक्सक्लूसिव ऑर। अब एक्सक्लूसिव ऑर में हमने n लगा दिया, n स्टैंड्स फॉर नॉट, तो हम आउटपुट पे एक नॉट गेट लगा देंगे। दिस इज द एक्सक्लूसिव नॉट गेट। तो अब हम इस नॉट गेट को रिप्लेस कर सकते हैं बबल से। तो अगर हम नॉट गेट को रिप्लेस कर देते हैं बबल से, इट विल कम लाइक दिस, इनपुट ए और b and output is. So this is the symbol of exclusive NOT gate. Now if we talk about the truth table of exclusive NOT, अब चूंकि exclusive और में हमने क्या जोड़ा, जो exclusive NOT बन गया, that is NOT gate. NOT gate का क्या काम है? कॉम्प्लीमेंट करना, रिवर्स करना, इन्वर्ट करना। तो जो हमारा आउटपुट ट्रुथ टेबल का एक्सक्लूसिव और का आया था, उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। वहां पर हमने क्या कंसेप्ट देखा था, अगर दो सेम इनपुट्स होंगे तो आउटपुट 0 होगा, डिफरेंट इनपुट्स होंगे तो आउटपुट 1 होगा। यहां पर जस्ट उल्टा हो जाएगा, अगर सेम इनपुट होंगे तो आउटपुट 1 आएगा और डिफरेंट इनपुट्स होंगे तो आउटपुट 0 आएगा। तो हम देखें हमारे पास दो सेम इनपुट्स हैं तो आउटपुट हमारा 1 आएगा। अब सेकंड और थर्ड केस में आउटपुट हमारे डिफरेंट है, डिफरेंट होंगे तो आउटपुट हमारा 0 आएगा। नाउ अब अगर इसका हम लॉजिकल एक्सप्रेशन देखें तो लॉजिकल एक्सप्रेशन निकालने के लिए एक प्रोसेस, हम आउटपुट में देखेंगे हाई कहां कहां है, 1 कहां है। 1 मींस हाई, 0 मींस लो इन डिजिटल। तो 1 हमारा एक तो यहां पर हाई है, तो मतलब हमारा आउटपुट हमारा यहां पर हाई है फर्स्ट पोजीशन पे, उसके रिस्पेक्ट में बाइनरी में रखते हैं a और b 0 0 0 0 है, तो हम लिख देंगे a बार b बार प्लस नेक्स्ट हमारा 1 यहां पर है, इसके रिस्पेक्ट में बाइनरी वैल्यू है a और b 1 1, a और b 1 1 बन गया, तो राइट ab। So this is the logical expression of XNOR gate. Clear? Now, जैसा हमने exclusive OR में देखा था special logical expression, इसमें भी expression logical symbol होता है, that is dot, इसको हम circle कर देते हैं। This is again known as exclusive NOR expression. So this is all about exclusive NOR gates. So we have discussed all the 3 categories of gates: basic gates, universal gates and special gates. Now we will discuss about the universal gates. इनको universal gate क्यों कहा जाता है? Why their name comes universal gates? यूनिवर्सल गेट्स इसलिए कहते हैं हम NAND और NOR को, क्योंकि इनकी मदद से हम कोई भी गेट बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या इनकी मदद से हम कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ ओनली NAND और NOR। या तो हमारे पास सिर्फ NANड गेट होगा तो भी हम उस लॉजिकल एक्सप्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं, अगर NOR होगा तो भी हम उस लॉजिकल एक्सप्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। हमें बाकी के गेट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एंड और एंड नॉट। उसका फायदा ये होगा कि you not need to extract the varieties of gate, you have to need only a signal either NAND or either NOR. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिवर्सल गेट में फर्स्ट कैटेगरी NAND गेट। NAND गेट की मदद से बाकी गेट कैसे बना सकते हैं, तो विल सी NAND गेट की मदद से बाकी गेट कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉट गेट। नॉट गेट को हम NAND गेट की मदद से कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले हम नॉट गेट का बेसिक सिंबल देखते हैं। तो बेसिक सिंबल ऑफ नॉट गेट इज दिस, इनपुट इज a, आउटपुट इज a बार। राइट, अब इसको हमें कंस्ट्रक्ट करना है NAND गेट से। तो लेट्स सी, वी विल कंस्ट्रक्ट इट यूजिंग द NAND गेट। अब हमारा मेन उद्देश्य ये होगा, जब भी हम किसी गेट को NAND या NOR से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसके बेसिक रिलेशंस में कोई अल्टरेशन नहीं आना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इनपुट और आउटपुट के रिलेशंस में कोई चेंज आया, दैट मींस वी आर नॉट डूइंग करेक्ट।
ओके, तो अब अगर हम देखें कि नॉट गेट का इनपुट सिर्फ एक ही होता था, लेकिन नैंड गेट और बाकी के सभी गेट्स के इनपुट्स मिनिमम तो होंगे, तो वी हैव टू गिव टू इनपुट्स लाइंस। अब चूंकि इनपुट हमारे पास एक ही है, तो हम दोनों लाइंस में इनपुट दे देंगे, फाइन। तो अब अगर हम दोनों को ए देते हैं तो आउटपुट में क्या आएगा मुझे, ए इंटू ए का होल बार, फाइन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एंड को फिर बबलिंग कर रहा है, बबलिंग इज नॉट, एंड क्या होगा आपका, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ए में, और बबल क्या करेगा, उसको कंप्लीमेंट करेगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो डिमॉर्गन्स लॉ से, तो ब्रेक द बार चेंज द साइन, यू विल गेट ए बार प्लस ए बार। और हमने देखा है डिमॉर्गन्स के डायग्राम में कि a प्लस a इज a, सिमिलरली a बार प्लस a बार इज a बार, फाइन। तो हम देख रहे थे इनपुट हमने a दिया, आउटपुट क्या मिला a बार, सेम नॉट गेट में इनपुट a दिया, आउटपुट मिला आपको a बार। हम यहां पर दोनों सेम इनपुट है, तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इन प्लेस ऑफ गिवन टू इनपुट्स सेपरेटली वी कैन कपल द इनपुट्स एंड गिव द इनपुट्स a and we get the output a bar. So this is how we are constructing NOT gate using NAND gate. Okay, first clear हुआ आपको कैसे हम NAND gate की मदद से NOT gate बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे हम NOT gate NAND gate की मदद से AND gate बनाते हैं। Let's see. Now we will see AND gate. सबसे पहले हम एंड गेट का बेसिक सिंबल देखते हैं। तो बेसिक सिंबल एंड गेट का है, ये इनपुट्स आर ए बी, आउटपुट इज y एंड आउटपुट y का क्या मिलेगा मुझे a और b। अब जब मैं नैंड गेट से बनाऊंगा तो आउटपुट मुझे a b ही मिलना चाहिए, इनपुट्स हमारे हो जाएंगे a b, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नैंड गेट से कैसे करते हैं। सबसे पहले तो नैंड गेट से हमने दिया इनपुट a b, आउटपुट चेक किया, तो आउटपुट क्या है, a डॉट b का बार, भाई, एंड हमें आउटपुट क्या चाहिए था, ए बी। तो ए बार ए डॉट बी के बार को क्या करें, ए बी आ जाए। सो वी हैव स्टडीड इन द इन्वर्जन लॉ कि अगर हम ए का डबल बार कर दें तो वो कैंसिल आउट होकर ए हो जाएगा। सिमिलरली इसमें अगर हम एक बार लगा दें दैट विल कन्वर्ट इनटू ए बी, तो इसमें बार लगाने के लिए क्या करेंगे, हम आउटपुट पे एक नॉट गेट लगा देंगे। तो आउटपुट पे हमने एक नॉट गेट लगा दिया है, it will give a function y equals to a b का बार का डबल बार, तो डबल बार फिर कैंसिल आउट, you will get a b। अब आपको आउटपुट तो मिलेगा y equals to a b, बट आपके गेट्स में होने चाहिए थे नैंड। यहाँ पर एक तो नैंड गेट है, दूसरा जो है नॉट गेट है। तो व्हाट विल डू, प्रीवियसली आपने देखा कि कैसे हमने नैंड की मदद से नॉट बनाया, तो वही यहां पर करते हैं, we do like this a b। अब यहां पर नॉट की जगह हमने नैंड लगा दिया। अब वहां पर हमने क्या किया था, इनपुट्स को कपल कर दिया था, यहां पे हमने इनपुट्स को कपल कर दिया and we will run this, we will get this is a b bar and we will get a b। so this is how we had constructed NAND gate with the help of NAND gate। so we requires two NAND gate to construct one NAND gate। clear? now we will see how we can construct OR gate with the help of NAND gate। OR गेट का सबसे पहले बेसिक सिंबल लिखें। तो बेसिक सिंबल ऑफ OR गेट इज दिस, इनपुट्स आर AB and output is Y। फाइन, नाउ अब मुझे इसको कंस्ट्रक्ट करना है NAND गेट से। तो व्हाट वी डू, वी विल गिव वन इनपुट हियर as NAND, one input here as NAND। this will work as a NOT gate, हम चेक करते हैं बाद में, and this both will give output to the input to the next element। अब हम चेक करें इसका एक्सप्रेशन क्या है। तो A को हमने, ये दिस इज नॉट NAND, नॉट गेट का जो परफॉर्म
होता है ऑपरेशन, वही ए नाइन गेट का है। इसका आउटपुट क्या होगा, ए बार, इसका आउटपुट क्या होगा, बी बार। नाउ ए बार इनटू बी बार का आर, तो इसका क्या है, ए बार डॉट बी बार, ये क्या होगा मल्टीप्लाई, एंड क्या करता है मल्टीप्लाई, और बबल क्या करता है उसको गुणा। अब इसको हम अगर डिमॉर्गन लॉ से करते हैं, एक का बाद चेंजेस है, विल गेट ए डबल बार प्लस बी डबल बार, डबल बार विल बी कैंसिल आउट विद इन्वर्शन लॉ, विल गेट y इक्वल्स टू a प्लस b। नाउ यू कैन चेक इट, जो हमारा बेसिक हमारा एक्सप्रेशन था और गेट का y इक्वल्स टू a प्लस b, वही हमारा नैंड गेट के थ्रू हमने और गेट बनाया, उसका एक्सप्रेशन दिया है y इक्वल्स टू a प्लस b। So like this you can construct OR gate with the help of 3 NAND gates. Fine. Now you see the next gate, that is NOR gate. NOR gate को कैसे NAND gate की मदद से बना सकते हैं, we'll see next category NOR gate। इसी में मॉडिफिकेशन कर देते हैं। NOR gate में क्या करते थे, NOR gate का बेसिक सिंबल क्या था, OR में बबल, OR में बबल कर दिया हमने। फाइन, तो एक्सप्रेशन क्या था NOR gate का, y इक्वल्स टू a प्लस b का होल बार, a प्लस b का होल बार हमने लिख दिया। नाउ अब ये हमारा अभी तक यहां तक क्या बना हुआ था पिछले केस में आपका NOR gate। एंड व्हाट इज NOR gate? NOR gate इज द नॉट प्लस ऑर। तो अब इसके आगे हम एक और नॉट लगा दें, इट विल गिव यू NOR gate। फाइन, तो इस नॉट को अगर हम चाहें तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज हम कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हैं यहां, सिर्फ और सिर्फ NAND की मदद से बाकी गेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो इस नॉट गेट को रिप्लेस करना पड़ेगा विद NAND गेट। तो इस नॉट गेट को अगर हम रिप्लेस कर सकते हैं NAND गेट से, तो लाइक दिस, दोनों इनपुट्स को कपल किया एंड विल गिव हियर। नाउ विल चेक, यहां पर आपका आउटपुट क्या आया था पिछले केस में, यहां पर आपका आउटपुट आया था पिछले केस में a प्लस b आया था। नाउ दिस इज आउटपुट बाय, अब ये क्या है, नॉट गेट है। नॉट गेट क्या करेगा, इसके आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट कर देगा, इसके आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट कर देगा, मतलब एक बार आ जाएगा a प्लस b का होल बार। नाउ यू कैन चेक कि जो बेसिक NOR गेट था उसका एक्सप्रेशन आ रहा था y इक्वल्स टू a प्लस b का बार। अब जब आपने NOR गेट बनाया विद द हेल्प ऑफ ओनली NAND गेट्स, तब भी आपका एक्सप्रेशन आ रहा y इक्वल्स टू a प्लस b का होल बार, बट यू रिक्वायर्स 4 NAND gates to construct the NOR gate with the help of only NAND gates. Clear है? Now we'll see the next categories. Next gate, how we can construct other gate. Other gate left is, one is XOR gate. XOR gate को इसको बोल सकते हैं exclusive OR gate। इसको हम कैसे NAND gate की मदद से बना सकते हैं, तो लेट्स सी। सबसे पहले हम एक्सक्लूसिव OR गेट का सिंबल बना देते हैं एंड उसका इनपुट्स एंड आउटपुट्स लिख देते हैं। अब इसका एक्सप्रेशन क्या था, याद होगा आपको, y इक्वल्स टू a बार b प्लस a b बार। फाइन, y इक्वल्स टू a बार b प्लस a b बार। अब आपको इसको बनाना है NAND गेट से, तो चूंकि अभी तक जितने भी आपने बनाए NAND गेट से गेट्स, नॉट एंड नॉट और वो सिर्फ एक सिंगल टर्म है। फाइन, अब आपकी जो दो टर्म्स है, आइदर हमारा फंक्शन आ रहा है एसओपी में सम ऑफ प्रोडक्ट्स, दो प्रोडक्ट टर्म है, एक प्रोडक्ट टर्म ये, एक प्रोडक्ट टर्म ये, दोनों का सम कर रहा है। तो अब यहां पर हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम जो हमारा जो प्रोडक्ट टर्म है या एसओपी टर्म है, उसको हम बेसिक गेट से डेवलप करेंगे। अगर हम बेसिक गेट से डेवलप करते हैं इसको, तो व्हाट वी डू, वी विल टेक वन एंड गेट। फाइन, एंड गेट के इनपुट्स क्या होंगे, वन इज ए बार, ए के साथ हमने इनपुट दे दिया डॉट, फिर हमने इनपुट दे दिया बी, फिर हमने दूसरे एंड गेट इनपुट दे दिया ए, और बी के साथ बार है तो हमने नॉट गेट बना दिया। फाइन, अब दोनों ऐड हो रहे हैं, दैट मींस वी रिक्वायर वन OR gate। So this is how we had constructed it using the basic gates।
दैट इज एंड और एंड नॉट। अब हमें इसको कंस्ट्रक्ट करना है NAND गेट से। तो जब NAND गेट से इसको कंस्ट्रक्ट करना है, व्हाट वी डू, जितने भी एंड गेट हैं उनके आउटपुट्स को बबल कर दें। तो हमारे पास दो एंड गेट हैं, उनके आउटपुट को बबल कर दिया मैंने। जितने भी और गेट हैं उनके इनपुट्स को बबल कर दें, उसको भी बबल कर दिया मैंने। फाइन। और इनपुट्स पे जितने भी नॉट गेट हैं उनको हम NAND गेट में कन्वर्ट कर दें। तो हमने इनपुट पे एक ये नॉट गेट था, उसको मैंने NAND गेट में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली दिस। फाइन। नाउ वी नो दैट ऐसा और गेट जिसके इनपुट्स बबल हो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं NAND गेट से। वी हैव सीन इट इन द डी मॉर्गन्स लॉ। अब हम देखते हैं, ठीक है, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ डी मॉर्गन्स लॉ का ए डॉट बी का होल बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार। ए डॉट बी का होल बार मतलब क्या होता है, आपका NAND गेट, ये आपका NAND गेट हुआ, सॉरी, टू इनपुट्स ए बी दैट इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, मतलब प्लस इज और गेट ए बार मींस इनपुट पे बबल और इनपुट पे बबल ए और बी। तो यही हमने किया था, और गेट जिसके इनपुट बबल है दैट इज इक्वल टू NAND गेट, इससे हमने रिप्लेस कर दिया। तो दिस इज हाउ यू हैड कंस्ट्रक्टेड द XOR गेट यूजिंग द NAND गेट। अब अगर आप आउटपुट चेक करना चाहते हैं, यू कैन चेक द आउटपुट। लेट्स सी कि इनपुट आउटपुट रिलेशन में कोई चेंज आया है क्या। तो दिस इज ए बार, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी बार। ये NAND गेट है तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके कंप्लीमेंट कर देगा। तो क्या करेगा, ए बार डॉट बी का होल बार, ये क्या करेगा, ए डॉट बी बार का होल बार। आउटपुट क्या करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों टर्म्स को कंप्लीमेंट कर देगा। तो उसको करेगा ये ए बार डॉट बी का होल बार डॉट ए डॉट बी बार का होल बार का होल बार। फाइन। अब आप डी मॉर्गन को अप्लाई करें, देखना बात चेंजेस है। अगर आप डी मॉर्गन को अप्लाई करते हैं, यू विल गेट ए बार बी का डबल बार प्लस डबल बार will be cancel out like this, and you will get a bar b plus b bar, and this is the desired result of your exclusive OR output जो हमें NAND गेट की मदद से बनना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 NAND गेट की मदद से हमने एक्सक्लूसिव OR गेट बनाया है। क्लियर है? नाउ विल सी द नेक्स्ट कैटेगरी, एक्सक्लूसिव NOR गेट। एक्सक्लूसिव NOR गेट को कैसे बना सकते हैं, NAND गेट की मदद से रब कर सकते हैं। सिक्स कैटेगरी इज एक्सक्लूसिव NOR गेट। तो एक्सक्लूसिव NOR गेट का सिंबल क्या होगा, इनपुट होंगे ए बी, आउटपुट होगा वाई का लॉजिक। इसका एक्सक्लूसिव NOR का लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या था, ए बार बी बार प्लस ए बी। फाइन। सबसे पहले पिछले स्टेप की तरह सबसे पहले हम इसको बेसिक गेट से डेवलप करते हैं। तो बेसिक गेट से डेवलप करेंगे तो वी नीड टू एंड गेट्स, और फर्स्ट वाले एंड गेट के इनपुट होंगे ए बार दैट इज नॉट गेट ए, बी बार दैट इज नॉट गेट बी, एंड नीचे वाले एंड गेट के इनपुट से डायरेक्टली ए प्लस साइन क्या करेगा, आगे बढ़ देगा भाई। अगेन आपको फिर एंड गेट की मदद से बनाना है। तो जितने भी एंड गेट है उनके आउटपुट को बबल कर दीजिए। यहां पर दो एंड गेट्स है, उनके आउटपुट को बबल कर दिया। जितने भी और गेट है उनके इनपुट्स को बबल कर दिए। यहां पर एक और गेट था, उनके इनपुट्स को बबल कर दिया। और इनपुट्स में अगर नॉट गेट है उसको रिप्लेस कर दीजिए NAND गेट से। हमारे इनपुट्स में फर्स्ट गेट में दो नॉट गेट थे, उनको मैंने रिप्लेस कर दिया NAND से, दैट इज AB। और हमने ये भी देखा था पिछले केस में
कि जब ऐसा कोई केस जहां पर और गेट के इनपुट्स कवर्ड हो उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं NAND गेट से यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ। तो यहां भी हम फाइंड कर सकते हैं इस और गेट को जिसके इनपुट बदलते हैं उसको रिप्लेस कर सकते हैं NAND गेट से। नाउ लेट्स चेक आउटपुट। अब अगर हम आउटपुट चेक करें तो इसका आउटपुट क्या होगा, A बार B बार, इसका क्या होगा A बार डॉट B बार का होल बार, इसका क्या होगा A डॉट B का होल बार। आउटपुट में क्या आएगा आपको A बार डॉट B बार का होल बार डॉट AB का होल बार का होल बार, क्योंकि आउटपुट पे मल्टीप्लाई के साथ बबल लगा हुआ है। अब डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे फिर से आप, तो ब्रेक का बार चेंजेस है, इस बड़े बार को ब्रेक कर दीजिए, फिर A बार B बार का डबल बार प्लस AB डबल बार। नाउ इन्वर्जन लॉ कहता है दो डबल बार को हम ब्रेक कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, विल गेट A बार B बार प्लस AB। दिस इज द डिजायर्ड result of your exclusive NOR gate which you have to make with the help of NAND gate। तो यहाँ भी हमने 3 4 5 NAND gate की मदद से आपका exclusive NOR gate बना लिया। क्लियर है? Now we will discuss how we will make the other gates or all gates with the help of NOR gate। ये तो हमने देखा NAND gate की मदद से हम कैसे gates बना सकते हैं। Now we will see how we make the rest gates with the help of NOR gate, ताकि उसकी यूनिवर्सल नेचर है वो भी प्रूव हो जाए। Now with the help of NOR gate, NOR gate से सबसे पहले हम देखते हैं NOR gate। NOR gate का बेसिक नेचर देखते हैं, जैसे स्पेस लिया था A के बाद। अब अगेन आपको इसको x डॉट सॉरी NOR गेट से करना है, तो आपने पहले NOR गेट बनाया। अब चूंकि NOR गेट के कुछ होंगे, हमने दोनों इनपुट्स को कपल कर दिया जैसे पिछले केस में किया था हमने। A अब A प्लस A का होल बार, इसको ब्रेक करके डिमॉर्गन लॉ से तो आपको मिलेगा A बार डॉट A बार। हमको पता है एंड लॉस के थ्रू A डॉट A इज A, then A बार और A बार इज अगेन A बार। तो हमारा इनपुट एंड आउटपुट इज सेम। तो दिस इज हाउ वी आर कंस्ट्रक्टिंग NOR gate with the help of NOR gate। क्लियर? नाउ विल सी द नेक्स्ट कैटेगरी, कैसे हम AND गेट बनाएंगे with the help of NOR gate। AND गेट का आपका बेसिक सिंबल था इनपुट्स AB this and output is Y and एक्सप्रेशन था A डॉट B। अब इसको आपको बनाना है एक सॉरी नॉट से, तो व्हाट विल डू, इनपुट्स पे हम एक नॉट गेट बना दें, इसको हम इनपुट दे देंगे A और B AB, और उसको एक और नॉट गेट के इनपुट्स दे देंगे दोनों के आउटपुट्स। You will get output Y। Now we'll check it whether A dot B आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा A बार, यहाँ पर क्या होगा B बार। ये क्या कर रहा है, नॉटिंग कर रहा है, प्लस करके इसका कॉम्प्लीमेंट, तो A बार प्लस B बार का कॉम्प्लीमेंट, इसको डिमॉर्गन लॉ से ब्रेक करें, you will get A डबल बार डॉट B डबल बार। तो डबल बार कैंसिल हो, तो गेट A नॉट B। तो दिस इज व्हाट डिजायर्ड रिजल्ट। तो इस तरीके से हम NOR गेट की मदद से AND गेट बना सकते हैं, और 3 NOR गेट लगेंगे हमें जब हम AND गेट बनाते हैं थ्रू दिस मेथड। फाइन, नाउ वी सी द थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में वी सी OR गेट। OR गेट को कैसे बनाते हैं NOR गेट से, तो सबसे पहले वी कंस्ट्रक्ट द बेसिक OR गेट AB आउटपुट बाय उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा A प्लस B। यही हमें लेना है जब हम NOR की मदद से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने NOR गेट बनाया, एक इनपुट दे दिया हमने AB,
आउटपुट क्या है हमारा a प्लस b का होल बार। अब मुझे चाहिए a प्लस b, a प्लस b लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और बार जोड़ना पड़ेगा, इसमें एक और बार जोड़ना पड़ेगा, मतलब एक और नॉट गेट जोड़ना पड़ेगा। तो नॉट गेट की जगह हम क्या करें, नॉट गेट से है नॉट गेट को कपलिंग करके यू विल गेट a प्लस b का बार का बार उसको कैंसिल आउट, यू विल गेट a प्लस b। So like this you can construct the OR gate with the help of two NOR gates. Fine. Now we see how we can make NAND gate with the help of NOR gate. NAND गेट का आपका बेसिक सिंबल ये था ए बी, आउटपुट क्या था हमारा ए डॉट बी का बार। ठीक है, आपने इससे पहले देखा था कैसे हमने नॉर की मदद से एंड बनाया। सबसे पहले आप कैसे बना दीजिए, नॉर की मदद से कैसे एंड बनाया था, तो हमने कैसे बनाया था, इनपुट ए दिया था, ए बार आया था, इनपुट बी दिया था, बी बार आया था, and then we had given one more, sorry, this is x naught, not b. ठीक है, like this. Right? तो अब ये आपको यहां तक एक्सप्रेशन क्या मिलेगा था, तो दैट इज y इक्वल्स टू ab। अब आपको क्या चाहिए है, AB का होल बार। होल बार मींस दिस बार इंडिकेट्स द नॉट गेट कॉम्प्लीमेंट। तो आउटपुट पे एक और नॉट गेट लगा दीजिए, तो ये क्या देगा आपको, AB का होल बार इक्वल टू y। तो दिस इज हाउ यू आर कंस्ट्रक्टिंग NAND gate with the help of 4 NOR gates. Clear? Now we'll see the next two categories. कैसे हम एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट बनाएंगे नॉर गेट की मदद से। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सक्लूसिव और एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट हम कैसे बनाते हैं, लेट्स सी। हमारा जो बेसिक एक्सॉर गेट का सिंबल ये था और इसके इनपुट्स ये भी थे, आउटपुट y था और उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन था a बार b प्लस a b बार। अब इसको सबसे पहले सेम प्रोसेस आपको बेसिक गेट से डेवलप करना पड़ेगा। तो बेसिक गेट से डेवलप करेंगे आप इसको एफओबी टर्म को। हमारे पास एक एंड गेट, दो एंड गेट। फर्स्ट एंड गेट में हमारा इनपुट के साथ लगेगा नॉट गेट, फिर लगेगा इनपुट के साथ डायरेक्ट बी, फिर देन डायरेक्ट इनपुट ए, देन इनपुट बी के साथ लगेगा आपका नॉट गेट। आउटपुट पे और इन गेट द रिजल्ट पर। अब क्या करना है आपको, इसको किससे डेवलप करना है, इसको आपको डेवलप करना है नॉर गेट से। नॉर गेट से जब हम डेवलप करेंगे तो जितने भी और गेट है उनके आउटपुट को बबल कर दें। यहां पर एक और गेट है उसके आउटपुट को बबल कर दिया, और जितने भी एंड गेट है उनके इनपुट को बबल कर दें। यहां पर दो एंड गेट्स हैं, उनके इनपुट्स को मैंने बबल कर दिया। ठीक है, अब इस एंड गेट को जिसके इनपुट बबल है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट, क्योंकि जो हमारा डिमार्कस का दूसरा लॉ है। डिमार्कस का दूसरा लॉ कहता है a प्लस b का होल बार इक्वल टू a बार डॉट b बार। मतलब a प्लस b का होल बार किसका एक्सप्रेशन है, नॉर गेट का। नॉर गेट मतलब दिस इज इक्वल टू डॉट मींस एंड, लेकिन बार है, इनपुट्स बबल है, तो एंड का एक्सप्रेशन एंड इनपुट्स आर बबल्ड, मतलब कॉम्प्लीमेंटेड है। तो हमने वही करना है, एंड गेट इसके इनपुट बबल है उसको रिप्लेस कर देना है नॉर गेट से। नाउ अलोंग विद दैट व्हाट वी डू, हम ये चेक करेंगे ये बबल इंडिकेट कर रहा है एक नॉट गेट, ये भी एक नॉट गेट है। तो दोनों नॉट गेट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे a डबल बार विल रिजल्ट इन a, सिमिलरली ये बबल विल इंडिकेट नॉट गेट हियर, दिस बबल विल इंडिकेट नॉट गेट हियर, and this two bubbles will cancel out each other। तो हमारा बेसिक डायग्राम नहीं बनेगा। सबसे पहले हमारा ये नॉट गेट जैसे हमने देखा डिमार्कस लॉ से,
ए बार की जगह ए आ जाएगा क्योंकि दोनों कैंसिल हो चुका है। नॉट गेट बी पे बबल था तो वो एक एडिशनल नॉट गेट की मदद से उसको नॉट गेट होगा। सिमिलरली ए जो हमारा नहीं था उसकी जगह पे हमारा एक नॉट गेट आ जाएगा। बी पे हमारा ऑलरेडी एक बबल था और इस इनपुट पे अगेन एक बबल था, बबल ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, यू विल गेट बी। So this is how we can construct using the NOR gate। अब इसका भी एक और स्टेप बचा है, पहले इसको चेक कर ले कि हमारा आउटपुट क्या है। तो हम इसका देखें, इसका आउटपुट क्या होगा, इसका बी बार, इसका ए बार, इसका आउटपुट क्या होगा ए प्लस बी बार का होल बार, इसका क्या होगा ए बार प्लस बी का होल बार, और आउटपुट वाई पे क्या आ रहा है मुझे, that is a plus b का होल बार प्लस a बार प्लस b का होल बार का होल बार, राइट। इसको रख कर देते हैं। नो डी मार्कस लॉ अप्लाई करेंगे आप, इसको ऊपर लिख देता हूं। डी मार्कस लॉ अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो विल गेट a प्लस दैट इज b बार, a प्लस b बार का होल बार तो ब्रेक के बाद चेंजेस है डॉट a बार प्लस b का होल बार का होल बार विल बी कैंसल आउट, विल गेट रिजल्ट दिस, बट दिस इज नॉट योर डिजायर्ड रिजल्ट। आपके डिजायर्ड रिजल्ट था a बार b प्लस b बार, तो हम क्या करेंगे, आउटपुट पे एक और हमें नॉट गेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि एसओपी फंक्शंस जो है दैट आर मेंट टू बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग NAND गेट एंड पीओएस फंक्शन आर मेंट टू बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग NOR गेट। जब हम किसी एसओपी फंक्शन को NOR गेट से कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आउटपुट पे हमें एक एडिशनल नॉट गेट लगाना पड़ता है। तो अब अगर आप एडिशनल आउटपुट पे एक नॉट गेट लगाएंगे, व्हाट विल सी, नॉट गेट मींस नॉट गेट की मदद से हम नॉट गेट को करें तो हम क्या करेंगे, इसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो आउटपुट क्या आएगा आपका, ब्रेक के बाद चेंजेस आएंगे कॉम्प्लीमेंट प्लस ब्रेक का अप्लाई डिमांड फॉर हियर आल्सो एंड हियर आल्सो, यू विल गेट y इक्वल्स टू a बार डॉट बी डबल बार, क्योंकि ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस अगेन यहां ए डबल बार डॉट बी बार। तो डबल बार कैंसिल कैंसिल आउट, विल गेट y इक्वल्स टू a बार b प्लस a b बार, दैट मींस योर डिजायर्ड रिजल्ट विल चेक a बार b प्लस a b बार। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कैसे हमने एक्सक्लूसिव और गेट को नॉर गेट की मदद से बनाया। तो कितने गेट लगे, 1 2 3 4 5 6 गेट की मदद से हमने एक्सक्लूसिव और गेट बना दिया। फाइन, नाउ वी सी द लास्ट कैटेगरी दैट इज एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव नॉर गेट का बेसिक सिंबल हमारा ये होगा इनपुट से भी आउटपुट y, एक्सप्रेशन होगा हमारा a बार b बार प्लस ab। अगेन सबसे पहले हम इसको बेसिक गेट की मदद से बनाएंगे। बेसिक गेट की मदद से बनाएंगे सबसे पहले हमारा दो एंड गेट्स, इनपुट्स हमारे एक नॉट गेट and then inputs are maybe here and then orange output by। अब अगेन सेम करना है हमें नॉट गेट से करना है इसको, तो और गेट के आउटपुट को बबल करना है एंड के इनपुट को बबल करना है, ठीक। अब एंड के इनपुट को जो आपने बबल किया है दैट कैन बी रिप्लेस्ड विद द नॉट गेट। तो हमने देखा सबसे पहले यूजिंग सेकंड डी-मॉर्गन्स लॉ, और ये दोनों बबल एक दूसरे को काटेंगे तो ये सिंगल इनपुट बचेगा ए बी,
और ये बबल यहाँ पर इनपुट कर जाएंगे तो ये आपको नॉट गेट होगा भाई। तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला नॉट गेट, दैट इज डायरेक्ट एबी, क्योंकि दोनों बबल एक दूसरे को काट रहे हैं। नाउ इसकी जगह आपका आ जाएगा अब इनपुट्स पे बबल ए बी, ठीक है। बट अभी भी आपका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आएगा। डिजायर्ड रिजल्ट आने के लिए आपको आउटपुट पे एक और नॉट गेट लगाना पड़ेगा, फाइन। तो आप आउटपुट पे डिजायर्ड एक और नॉट गेट लगाएंगे, दैट मींस नॉट गेट लगाएंगे, यू विल गेट दैट y इक्वल्स टू a बार b बार प्लस b। आई होप ये आप निकाल लेंगे। अब ये आपका असाइनमेंट है, अब चेक करें कैसे हम इसको सॉल्व करके a बार b बार प्लस b निकालेंगे, फाइन। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक कि कैसे हम यूनिवर्सल गेट्स इसको कहते हैं नैंड और नॉट को, क्योंकि इनकी मदद से हम कोई भी गेट बना सकते हैं। तो हमने नाइंड से देखा कैसे हमने नॉट गेट बनाया, एंड गेट बनाया, और गेट बनाया, नॉर गेट बनाया, एक्सक्लूसिव और गेट बनाया, एक्सक्लूसिव नॉर गेट बनाया। सिमिलरली नॉर गेट से भी हमने क्या करना है, नॉट, एंड, और, नैंड, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो दिस इज द यूनिवर्सलिटी ऑफ द गेट्स नैंड एंड नॉट, फाइन। So this is all about gates. अब एक और टॉपिक हम लेते हैं, that is related to our logic gate system. That topic है multi-level gate implementation. मल्टी-लेवल की हमारे जो गेट्स हैं वो कैस्केडेड में कनेक्टेड होंगे इनपुट से लेकर आउटपुट तक, और इनपुट से आउटपुट तक जितने गेट्स कनेक्टेड होंगे उतने हमारे लेवल्स होंगे। मल्टी मींस मेनी, मोर देन 2 और 3 और मोर देन 1, फाइन। तो हम अगर देखें मल्टी लेवल गेट इंप्लीमेंटेशन में हमारे एसओपी टर्म्स, ये पीओएस टर्म आर द 2 लेवल गेट इंप्लीमेंटेशन। अगर एग्जांपल के तौर पर कोई एसओपी टर्म लेते हैं, कोई भी एसओपी टर्म ले लेते हैं, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म। सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म में अगर हम एग्जांपल ले एबी प्लस ए बार बी ले लेते हैं। अगर हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग बेसिक गेट्स, तो वी हैव एबी एंड देन एंड गेट एंड देन इट इज and then foreign the foot we get y. तो एक हमारा these are the two levels. This is level first, level 1, and this is level 2. So like this we can define multi-level gate implementation. That is the number of gate connected in cascade from input to output. ठीक है। अब मल्टी लेवल गेट इंप्लीमेंटेशन एक चीज ध्यान रखना है, जो हमारे इनपुट वेरिएबल्स में नॉट गेट लगते हैं उनको हम एक लेवल के फॉर्म में नहीं कंसीडर करेंगे। अगर हम करते हैं तो 3 हो जाते हैं, 1 2 3, बट ये हमारे इनपुट के साथ नॉट गेट लगे हुए, तो इनपुट के साथ अगर नॉट गेट कनेक्टेड हो गए तो दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ एडिशनल लेवल, फाइन। अगर हम प्योर बस टर्म देखें, फॉर एग्जांपल y = a + b into c plus d bar, इसको कंसीडर करते हैं यूजिंग बेसिक गेट्स। ये पहले का होगा और गेट ab एंड देन ये होगा अगेन और गेट c एंड देन d के साथ आपका नॉट गेट, और आउटपुट में क्या होगा आपका एंड गेट। आउटपुट बाय अगेन दिस इज कंसीडर्ड एज two levels. One is level 1 here and other is level 2 here. So this is the 2 level gate implementation. Like this we can talk about the next levels also. एक और देखते हैं ट्रांसफर जिससे आप और अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जांपल के तौर पर कोई मैं लिखता हूं सर्किट लिखा से
इनपुट दे दिया मैंने ए बी, इसको इनपुट दे दिया सी एंड डी एंड देन आई हैव गिवन इट डी। एक और दे दिया हमने गेट और गेट तो दे दिया है ई एफ लेट्स सी। अगर ये कोई हमारे पास कोई लॉजिक का डायग्राम है, इसके हमारे पास हम देखें कितने लेवल होंगे। फर्स्ट लेवल होगा हमारा ये, सेकंड लेवल होगा हमारा ये, एंड थर्ड लेवल होगा हमारा ये। So in this logic diagram we have 3 levels and we have taken the 5 number of gates and total number of inputs are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 inputs है, 8 आउटपुट है, 5 gates है और 3 level है। This is how we are defining the multi-level gate implementation. I hope you understand this topic. Now we take the last topic, multiple output implementation. मल्टीपल आउटपुट इंप्लीमेंटेशन में जैसे यहाँ पर लेवल अलग अलग थे, वहां पर आउटपुट्स अलग अलग होंगे। मल्टीपल आउटपुट इंप्लीमेंटेशन को समझने के लिए विल टेक वन एग्जांपल। उस एग्जांपल के माध्यम से आपको ज्यादा इजी समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास दो आउटपुट हैं, तो फंक्शन f1 है, दैट इज a बार b प्लस cd, एंड सेकंड हमारा अगेन a बार b प्लस ef। अगर मुझे इसको कंस्ट्रक्ट करना है लॉजिक गेट से, तो हाउ विल कंस्ट्रक्ट, हमारे पास दो फंक्शन है एंटायरली डिफरेंट, तो हम फर्स्ट फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करेंगे, दैट इज a बार b देन cd एंड दिस इज फंक्शन 1। Similarly, for function 2, we take there is a bar d and then cd and then output there is f2. This is how we are implementing generally, normally. But जब हम मल्टीपल आउटपुट के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे, तो मल्टीपल आउटपुट का मतलब है हमारे पास जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी आउटपुट हैं, अगर उसमें ऐसे कोई इनपुट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो हम उसको सेपरेट कर लिख के उसको हम कंबाइंडली ले सकते हैं। लेट्स सी व्हाट आई एम सेइंग। हम क्या करें, इसको दे दें पहले इस वाले को cd जो कि अलग है, दूसरे वाले को दे दें हम a बार b एंड तीसरा दे दें हम हमारा ef। हम देख रहे थे कि a बार b कॉमन था दोनों के लिए, f1 के लिए भी f2 के लिए भी। तो जब हम f1 लेंगे, f1 में हमारा ऑरिक होगा फर्स्ट टू का, फाइन, दिस इज f1। f2 में अगेन ऑरिक होगा इन दोनों का, तो विल टेक वन अगेन और गेट, और हम यही वाला इसको दे देंगे इनपुट f2 को जो कि a बार b का, और एक इनपुट था हमारा ef। तो इन प्लेस ऑफ मेकिंग विद द 6 gate we had constructed it using the 5 gate. This is the concept of multiple output implementation. इस तरीके से हम हमारे सर्किट को और मिनिमाइज कर सकते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकते हैं यूजिंग मल्टीपल आउटपुट इंप्लीमेंटेशन। So this is all about today's lecture. We have discussed today the logic gates. In logic gates there are three categories: basic gates जिसमें AND और AND NOT गेट होता है, उनके ट्रुथ टेबल देखे हमने, उनके लॉजिक डायग्राम देखे, उनके लॉजिकल सॉरी सिंबल देखे, उसके लॉजिकल एक्सप्रेशन देखे। फिर हमने देखा आपकी यूनिवर्सल गेट NAND एंड NOT, और उनके हमने देखा कैसे NAND और NOT की मदद से कोई भी गेट बना सकते हैं। फिर हमने देखा स्पेशल गेट्स जो कि हमारे XOR और XNOR गेट थे। इसके बाद हमने देखा कैसे हम मल्टी लेवल गेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड मल्टीपल आउटपुट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर एंड आई होप सो यू अंडरस्टैंड everything in this lecture.
इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट क्लियरिंग सेशंस में पूछ सकते हैं। एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।